Welcome to VLearn. This is session 2 of OOAD. In this session, we are going to discuss about object-oriented design. Under this session, we are going to cover certain topics which are as follows. First one is define analysis, then define design, then why to study OOAD, then difference between procedural analysis and design, object analysis and design, then component analysis and design, and at last models used by the object oriented analysis and design. First one is define analysis. When we talk about analysis is basically a detailed study of the system. That means which operations the system is going to perform and what are the parameters or the elements which we are going to use in a system. So analysis is basically a detailed study of the various operations performed by a system and their relationship within and outside of the system. That means कोई भी यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हो, उन ऑपरेशंस की हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम शो करते हैं एनालिसिस पार्ट में. बेसिकली जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मीन्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. एनालिसिस को हम गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं. So here we gather information and this information is stored on available files, decision points and transactions handled by the present system. Basically when we talk about transaction, यहाँ पर transaction क्या होती हैं? Transaction, we can say that a transaction is a series of logical operations that a system is going to perform. So transaction क्या है? कुछ भी एक सीरीज हो सकती है operations की जो कि एक system perform करेगा. So when we say डिफाइन एनालिसिस, जब हम एनालिसिस को डिफाइन करते हैं तो या कोई भी एनालिसिस टास्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं. दैट मीन्स द टूल्स विच आर यूज फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन एनालिसिस पार्ट वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड विद द help of certain tools like data flow diagrams, then interviews, on-site observations and questionnaires. So data flow diagram shows the flow of data between different components in a system. Interviews, basically interview is a technique of collecting information by visiting and taking an interview of a one by one individual. Now the next one is on-site observations. On-site observations means that a particular person reached to that place and then he himself going to observe the conditions, the operations and the functioning in a system. The next one is questionnaires. Questionnaire is basically a series of questions, simple yes or no questions. यहाँ पर simple yes or no questions होते हैं जिनको कि हमारा कोई भी यूज़र है या क्लाइंट है वो simple yes or no में रिप्लाई करता है पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए. Now the next thing is once the analysis is completed, the analyst has a firm understanding of the system, what is to done. That means जब हमारा एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर जो हमारा एनालिस्ट है, एनालिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु हैज़ डन द एनालिसिस पार्ट. सो एनालिस्ट को ये हमें ये पता चल जाता है एनालिसिस के बाद कि अब हमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है, जो सिस्टम है हमारा वो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट. सो during the designing the system we move from logical to the physical aspects of the life cycle. Now let us discuss about design. Basically when we talk about design, जब हम किसी डिज़ाइन की बात करते हैं तो it shows the overall structure, overall decomposition or compositioning of a system, overall look of a system. So when we define design, it basically refers to the technical specifications that will be applied in implementing the candidate system. That means आपने जो कंपोनेंट्स जो टेक्निक्स यूज़ की हैं किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, डेवलप करने के लिए, यूज़ करने के लिए, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिज़ाइन पार्ट में. दिस इन्वॉल्व्स इनपुट आउटपुट फाइल एंड प्रोसेसिंग. डिज़ाइन refers to the technical specifications that will be applied in implementing the candidate system. Candidate system is the system which you are going to develop. Candidate system कोई भी एक सिस्टम हो सकता है जिसको हम क्रिएट करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर जो हमारे पर्टिकुलरली ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं, या जो हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, हमारा इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, या कोई भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं बैक एंड में कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है वो हमारा
रिप्रेजेंट करते हैं हम डिजाइनिंग के थ्रू। नाउ स्टेप्स इन सिस्टम डिज़ाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटपुट डिज़ाइन, देन इनपुट डिज़ाइन, फाइल डिज़ाइन, देन प्रोसेसिंग डिज़ाइन। यहाँ पर बेसिकली ये स्टेप्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि जो हमारा कोई सिस्टम है उसका डिज़ाइन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटपुट उसका डिज़ाइन शो करते हैं कि आउटपुट उसका क्या आएगा। आउटपुट के बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हो कि अगर आपको ये आउटपुट चाहिए पर्टिकुलर तो आप कौन से इनपुट्स प्रोवाइड कराएंगे। देन हाउ वेयर टू स्टोर दीज आउटपुट्स इनपुट्स, दैट इज इन द फाइल पार्ट्स, in the files or in a database. Then processing design, how to process the data. Then detailed documentation shows the overall functioning of a system. Then design submitted to management for approval. After that, when you prepare a documentation, then you move this, then you submit this documentation or give this documentation to the management for the approval. Then the next comes the design accepted or not. If the design is accepted, then the testing is done, otherwise the project is restarted again because it has been abandoned by the top management. So this is the basic these are the basic steps which we follow in a system design. Now why OOAD? Basically किसी भी चीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, when we have certain advantages, certain benefits of that system or technology. So same thing is applied here. Why we use OOAD? That means why we use the concept of object oriented analysis and design, because object orientation approach to software development based on modeling objects from the real world and then using the model to build language independent design organized around those objects. That means ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हम सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं, हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इट इज़ ईजी टू परफॉर्म ऑपरेशंस, इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड द सिस्टम, इट इज़ ईजी टू यूज़ द कोड, ऑर्गेनाइज द कोड and create independent modules. So with the help of objects it is easy to handle the problems arises in a system. That's why we use OOAD. OOAD provides and promotes. So here are certain things which is provided by the OOAD. First one is better understanding of requirements. With the help of object oriented analysis and design the system is properly organized. दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसकी हेल्प से हम ईजिली किसी भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट्स, किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लीनर डिज़ाइंस। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, काफ़ी ईजी होता है उसको अंडरस्टैंड करना। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड. सो दीज आर द डिज़ाइंस which are very clear to understand. Then easy to make changes in the system as we have already discussed. हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास विच आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, सो वी कैन मेक ईजी चेंजेस टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिस्टम. रिपोर्ट पब्लिश्ड इन जापान. सो basically this is related to the history part. The software industry still relies mainly on the informal पेपर एंड पेंसिल अप्रोच इन द अपस्ट्रीम डेवलपमेंट फेजेस. दैट मीन्स बेसिकली हमारी प्रीवियस जनरेशन्स क्या यूज़ करती थी, पेपर वर्क यूज़ करती थी डेवलपमेंट्स के लिए, लेकिन आज के टाइम पर ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ नहीं करते. अब हम यूज़ करते हैं जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ IT, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन. नाउ वाई टू यूज़ मॉडल्स. कोई भी सिस्टम हम क्रिएट करते हैं उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं. तो वाई वी यूज़ दीज मॉडल्स, हम इन्हें बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स इट इज़ ईजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे इन दीज मॉडल्स वी परफॉर्म सर्टेन स्टेप्स, वी कैरी आउट ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, लॉजिकल प्रिसिशन, परसिस्टेंस एंड अटेंशन टू डिटेल्स. So these are the basic operations which we perform while with the help during these models. So that's the only reason why we use different models to create different systems. Now the evolution of models. Basically there are three types of model. First one is procedural model, then object oriented model, then component model. Now we are going to discuss them.
one by one. The first one is procedural model. When we talk about procedural model सेम हमारा वर्क करता है डिकम्पोजिशन टेक्निक की तरह. यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कोई भी हमारा जो मेन प्रॉब्लम है अगर उसको हम फर्दर पार्ट्स में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो ईजी हो जाती है. इट बिकम्स ईजी टू सॉल्व दैट बिग प्रॉब्लम. सो टू minimize the complexity, each problem is divided into smaller problems and solved using specific modules that act on data. Basically when we talk about this, it is a centric approach or a procedural approach. procedural approach हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वन बाय वन हम सभी मॉड्यूल्स की फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं आफ्टर ब्रेकिंग द मॉड्यूल्स इनटू सब डिविजन्स. जो हमारा मेन मॉड्यूल है उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हर एक मॉड्यूल की हम फंक्शनिंग डिफाइन करते हैं. स्टेप बाय स्टेप हम फंक्शनिंग प्रोवाइड कराते हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, हम फिक्स प्रोसीजर फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्रोसीजरल मॉडल. दिस इज बेसिकली नॉट आइडियल फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बिकॉज कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रोसेस. जनरली ये प्रोसीजरल मॉडल जब हम फॉलो करते हैं, प्रोसीजरल मॉडल को हम जो हमारी इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मॉलर सिस्टम्स होते हैं, स्मॉलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं. वी कैन नॉट यूज इट फॉर द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स बिकॉज यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर फोकस होता है वो एक प्रोसेस पर होता है, ना कि पूरे सिस्टम पर. दैट्स वाई वी यूज़ इट ओनली फॉर द स्मॉलर सिस्टम्स और द ईजियर वंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द procedural models are tightly interwoven and interdependent. That is, it is difficult to separate one module from another. That means यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. एक मॉड्यूल की फंक्शनिंग दूसरे पर डिपेंड कर सकती है. लाइक आप नॉर्मल एग्जांपल लें, हमने कोई एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है, सॉफ्टवेयर कोई क्रिएट किया है, उसमें सपोज हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए. हम चाहते हैं दो नंबर्स का एडिशन हो एडिशन मॉड्यूल में और वो जो आउटपुट आएगा वो एज अ इनपुट वर्क करेगा हमारे सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल के लिए. तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल है वो एडिशन मॉड्यूल पर डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरडिपेंडेंट मॉड्यूल्स. दिस टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स और दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस कम्स अंडर प्रोसीजरल मॉडल. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी बिकम्स डिफिकल्ट एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद द प्रोसेसेस. यहाँ पर प्रोसीजरल मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतना ही उसे डिफ़िकल्ट होगा उसमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना. सो व्हेन वी अप्लाई रीयूजेबिलिटी वी कैन ओनली यूज इट फॉर द स्मॉलर एप्लीकेशंस, द सिंपलर वंस. नाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, it is a system, it is a model which perceives the entire software system as a collection of objects which contains attributes and behaviors. That means here a particular system is created with the combination of attributes which shows the values on which the operation is going to be performed, and the behavior is the operation which is performed by the system. So behavior है वो क्या शो करेगा, वो पर्टिकुलरली शो करेगा फंक्शनिंग द ऑपरेशन विच अ सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स. वाई वी हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. फर्स्ट वन इज रियलिस्टिक मॉडलिंग. बेसिकली हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो हमने टर्म यूज़ की थी कि हमने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट्स से हम अपने रियल लाइफ एंटिटीज़ को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट्स वाई we have used object oriented model, that is realistic modeling. Next one is reusability. With the help of the concept of object oriented models we can reuse the data, we can use the data again and again according to the need in different modules with by the concept of inheritance की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर डेटा को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. सो इट सेव्स आवर टाइम एज वेल एज आवर कॉस्ट. Next one is resilience to change. Basically with the help of these objects we can easily change our system. It becomes dynamic. So it is easy to change our system with the help of objects. That's why we use these model. Now the component based model. Basically when we talk about a component is particular element
or a particular part in a whole software system. जब हम किसी कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी को, एक पर्टिकुलर पार्ट को किसी भी सिस्टम के। कोई भी हमारा जब कंपोनेंट होता है, अगर उसे हम रिमूव करेंगे किसी सिस्टम से और अगर उस सिस्टम की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है उस चीज़ से, दैट मीन्स इट इज़ अ रियली अ कंपोनेंट। नहीं होता है देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए system. So software development is done based on a standard that allows software components to communicate with one another. That means with the help of component model, जो हमारे different components हैं किसी भी system में वो easily communicate कर सकते हैं. Like if we take example of a computer system, अगर हम computer system की बात करें तो different components कौन कौन से हो सकते हैं? CPU, mouse, keyboard, monitor. These are different components of a computer system. So in a system these components can communicate with each other with the help of component based model. Basically when we talk about component based models, it follows the concept of reusability. That means यहाँ पर कोई भी data again and again reuse कर सकते हो. That you can plugged in or unplugged from an application. That means you can easily use or remove a particular component or data from a system. Next one is object oriented methodology. So in this object oriented methodology, basically it consists of a building a model of an application domain and then adding implementation details to it during the design of a system. जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी की बात करते हैं इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन यू कैन सी हियर. सबसे पहले हम किसी भी मॉडल को क्रिएट करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का डोमेन क्रिएट करते हैं, फिर उसमें हम कुछ फंक्शंस कुछ फीचर्स उसमें ऐड करते हैं ड्यूरिंग इट्स डिज़ाइन फेज. द नेक्स्ट अप्रोच हेयर इज़ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक. बेसिकली ये जो हमारी टेक्निक है ये सेम वही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है अभी जो हमने डिस्कस किया कि हम कोई भी एक सबसे पहले एप्लीकेशन डोमेन क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ फीचर्स को ऐड करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स ऐड करेंगे. सो दिस होल कॉन्सेप्ट कम्स अंडर अ टर्म अ टेक्निक कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग टेक्निक. नाउ द स्टेजेस ऑफ मेथोडोलॉजी. Methodology is basically a technique, is a method. The first one is analysis, then system design, then object design, and at last implementation. So at last here are certain questions for you. The first question is what is the requirement of OOAD, and the second one is explain procedural model. So this is the end of today's session. Thank you.